Well, the Jat quota stir has brought a major part of Haryana to a standstill as protesters go on the rampage and clash with police in several areas. Curfew has been imposed in Rohtak, Bhiwani, Jind and Jhajjar. Section 144, which prohibits the assembly of more than 4 people, has been imposed in 6 districts of the state. The army has been deployed in 8 districts of Rohtak, Jhajjar, Sonipat, Panipat, Jind, Kaithal, Bhiwani and Hisar. In fact, the army had to be airdropped into Rohtak district. Protesters were blocking the roads. Protesters also set the railway station of Budha Kheda in Jind on fire. A total of 716 trains have been affected by the Jat agitation. Shoot-at-sight orders have been issued in Rohtak and in Bhiwani. Angry protesters also ransacked the office of a sub-divisional magistrate in Jhajjar and also set the office of the block development officer on fire in Meham. 3 schools were also set on fire. Meanwhile, protests were also witnessed at the Delhi University. An emergency meeting was called at the Delhi Secretariat at 1 p.m. over water supply, which is likely to be hit by the ongoing protests. The Home Minister also chaired a meeting with the Defence Minister Manohar Parrikar, Finance Minister Arun Jaitley, MOS Home Kiran Rijiju and the Haryana Jat leader and Rural Development Minister Chaudhry Birendra Singh to discuss this crisis. A day after arsoning in Rohtak, the situation continues to be tense in the adjoining areas. At the moment, we are at Bahadurgarh, where all the shops are closed, the market is closed because the shopkeepers are concerned. Here you can see a jewelry shop where the shopkeeper is sitting right outside his shop to guard it. Let's have a word. आप दुकान के बाहर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं आप? सेफ्टी पॉइंट, सेफ्टी के लिए, अपने जिससे कोई दंगा फसाद ना हो। आपके यहाँ बाहर बैठने से क्या लगता है, फर्क पड़ेगा आपको? फर्क तो पड़ेगा, जान पहचान। So you can see that people are quite worried here. The normal life has been badly affected. All the routes have been, clogged due to jams at different places, and situation continues to be tense. Government is making efforts to have talks with the Jat leaders, but at the moment they are quite agitated, and due to the agitation, the entire area is badly affected. With camera person Vijay Gupta, Afir Khan in Bahadurgarh, Point yesterday. Right, DGP Haryana is holding a press conference. Let's cut across to that. जिसको रोकने के लिए पूरे प्रयत्न जिला प्रशासन और पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा किए जा रहे हैं। महम में एक पेट्रोल पंप को डैमेज किया गया, आग लगाई गई। थाना सदर महम को आग लगाई गई। नेशनल हाईवे 1 पे भी कुछ जगह कुछ असामाजिक तत्वों ने जाम लगाया हुआ है, जिसको खोलने का प्रयास जारी है। छुटपुट वायलेंस की खबरें कुछ और अन्य जिलों से, जाम की कुछ खबरें कुछ अन्य जिलों से आ रही हैं, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हर जगह असामाजिक तत्व नहीं जाम लगा रहे, क्योंकि काफी जगह पुलिस और प्रशासन द्वारा समझाने पर जाम खोल भी दिए गए हैं। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि आर्मी के 13 कॉलम्स हमारे पास पहुंच चुके हैं और अन्य 10 कॉलम हमारे पास पहुंचने वाले हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनी हमारे पास पहुंच चुकी हैं और अन्य 23 कंपनीज रास्ते में हैं, और वो कुछ को एयरलिफ्ट से और कुछ को बाय रोड हम उनके जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहां पहुंचा रहे हैं। आज सुबह भी मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी साहब से बात की थी और वो 10 और कंपनी हमारे को देने को मान गए हैं। मेरा आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि गांव के जो बुजुर्ग हैं अपने बच्चों को इस
आंदोलन में पार्टिसिपेट करने से रोकें और स्पेशली उनको शहरों की तरफ ना भेजें। खापों से भी ये अनुरोध है कि मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बाद जो लोग उसमें बच्चे या यंग लॉट है जो पार्टिसिपेट करता है वो उनके कंट्रोल से निकल जाता है, तो अनुरोध है कि वो भी इस तरह की मीटिंग्स अभी फिलहाल ना करें, तो कानून व्यवस्था कायम करने में ज्यादा मदद मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इन वायलेंस में कॉन्स्पिरेट कर रहे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन संतोष की बात है कि कल से आज स्थिति बेहतर है। प्रभावित जिलों में फ्लैग मार्च जारी है और आशा है कि जनता के सहयोग से हम जल्दी ही स्थिति पर काबू पा लेंगे। रोहतक नहर के अंदर भी थाना फूंक दिया गया है। आप कह रहे हैं स्थिति काबू में है। नेशनल हाईवे नंबर 1 जाम कर दिया गया है। इस तरह की खबरें आ रही है। मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की कोठी को भी टारगेट किया गया है। क्या ये जानकारियां हैं? नहीं, यहाँ तक नहीं। सैनी के घर पर भी जो है तोड़फोड़ हुई है। ये बात सही है। नहीं, ये बात सही है कि माननीय कृषि मंत्री जी के निवास पर झज्जर में कुछ लोगों ने पथराव किया, लेकिन तुरंत पुलिस पहुंचने के बाद वो लोग वहां से भाग गए। सांसद राजकुमार सैनी के भी घर पर पथराव हुआ है। कल जब आपने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां तक सांसद राजकुमार सैनी जी के घर पे भी की बात भी है, उनके घर पे भी जैसे ही पथराव किया, जैसे ही सूचना मिली और तुरंत पुलिस ने पहुंच के उन लोगों को जो उपद्रवी थे उनको भगा दिया। सर ये बताएं, कल रोहतक में जो तोड़फोड़ हुई वित्त मंत्री के निवास पर, ऐसी जानकारी थी कि 4-5 घंटे या देर रात तक भी पुलिस नहीं पहुंची। क्या इस मामले की आपने कोई डिटेल ली? क्या है? ऐसा है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी प्रथम प्रायोरिटी आज के दिन और कल भी और आज के दिन भी ये है कि हम सब प्रथम कानून व्यवस्था को कायम करें। हमने सीनियर अधिकारी यहां से भेज दिए हैं, जिसकी सूचना आपके पास ऑलरेडी है। सभी अधिकारी मौके पे पहुंच गए हैं। वो सभी अधिकारी अपने अपने इलाके में फ्लैग मार्चेस को लीड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। कितना नुकसान अभी तक हो चुका है? कितने लोग मर चुके हैं? कैजुअलिटी कितनी है? ऐसा है, नुकसान कितना है? अभी सुबह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक के जो डायरेक्टर है डॉक्टर कालरा, उनसे बात हुई थी। उनके पास सिर्फ एक व्यक्ति ब्रॉड डेड की इंफॉर्मेशन है। टोटल 78 आदमी इंजर्ड हैं जो उनके हॉस्पिटल में आए हैं, जिसमें 5 पुलिसमैन हैं। 46 को फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। 31 इंजर्ड जो व्यक्ति हैं वो वार्ड्स में एडमिट हैं, जिसमें 5 आईसीयू में भी एडमिट हैं। ये सूचना आज सुबह की हमने आपकी कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ली थी। सिंगल साहब, एक सवाल है, इतना जानमाल का नुकसान हुआ, क्या आपको लगता नहीं कि इंटेलिजेंस फेलियर है? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के तमाम दावों के बावजूद मंत्रियों के घर पर हमले होते हैं, विधायकों के घर पर हमले होते हैं, सांसदों के। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, ऐसा है कि देखिए कोई भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी डायनामिक है और एक मिनट पे लोग प्लान बदल रहे हैं और नई नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। जैसे ही स्ट्रेटेजी बनती है, और क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही वाइड स्प्रेड है, तो उसको हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से काउंटर करने के लिए चेंज करनी पड़ रही है। और हमारी ये सोच थी कि सबसे पहले एजिटेटर्स को बातचीत के माध्यम से उनको एंगेज किया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको हाईएस्ट लेवल पे कंसीडर किया जाए। उन सारी कंसीडरेशन के बाद
सर ये सारा प्रोसेस तो सरकार का था, जो बातचीत का था। हरियाणा पुलिस नहीं लग रहा कि बेबस है, अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई। नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है 189 एयरलिफ्ट करके उतारा जा रहा है, आप रोड तक नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है सर। ऐसा है नहीं, अभी तक हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। 129 मुकदमे अब तक हमने दर्ज किए हैं और इसमें अभी 5 लोग तो गिरफ्तारी की सूचना मेरे पास है, लेकिन बाकी मैंने जिलों से अभी पूरी मैंने इकट्ठी नहीं करी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने मुकदमे दर्ज किए हैं उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। कल वाला रोहतक की जो हिंसा हुई थी, आपने उसकी जानकारी भी दी थी। जो सूचनाएं हमारे पास आई, हमारी सूचना कंफर्म नहीं हो सकती है, आप कंफर्म करेंगे कि रोहतक की पुलिस को, जो पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात कर लिया। मोब रोहतक में घूमती रही, आग लगाती रही, लूटपाट करती रही और पुलिस नाम की चीज कहीं नजर नहीं आई। नंबर एक तो ये, जीवन के जो वित्त मंत्री के घर को किसी को आग लगाई गई। हरिभूमि के अखबार में रात को 11 बजे भी गोलियां चला के आग लगाई गई। ये पुलिस तंत्र कहाँ था? नंबर 1। नंबर 2, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कोई एक्शन लेने जा रही है जिन लोगों ने, जिन अफसरों ने लापरवाही की? नंबर 3, कहां कहां पर कर्फ्यू लगाया गया है? कर्फ्यू लगने के बाद भी एजिटेटर्स बाहर हैं, गोली मारने के आदेश हैं, कहीं पर कोई कानून व्यवस्था नजर अभी भी दुरुस्त होती नजर नहीं आ रही है। इसके क्या कारण है? प्लीज एक एक करके सब। ऐसा है, ये नहीं, अब कंटिन्यू करें, 4 सवाल हो गए। ऐसा है, मिलिट्री के भरोसे नहीं है। मिलिट्री जो आई है वो प्रशासन की एड के लिए आई है। हम उनका सहयोग लेके जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेट्स और प्रशासन आदेश देगा उसके हिसाब से ही मिलिट्री कार्रवाई करेगी। जहां तक 4 सवाल हैं, 4 सवाल का जवाब आने दो। जहां तक ये बात है कि पुलिस प्रशासन रोहतक से गायब था, और ये बात मैं ये मानने को हद तक तैयार हूं कि जितनी इफेक्टिवली, जितनी फोर्स अवेलेबल थी उसको शायद प्रॉपरली ढंग से शायद डिप्लॉयमेंट नहीं की गई। लेकिन जो इंक्वायरी का विषय है ये सब बाद का विषय है। सबसे पहले जैसे आप सब मानते होंगे कि भाई हमारे को प्रथम प्रायोरिटी हमारी ये है कि कानून व्यवस्था को कायम करें, और उसी का प्रयास है कि हम ये चाह रहे हैं कि पहले कानून व्यवस्था कायम हो। जो अवेलेबल फोर्सेस हैं हमने रीग्रुप किया है। नए अधिकारी को यहां से डीजी रैंक के अधिकारी को, एक्सपीरियंस अधिकारी को, अधिकारी एक फाइनेंशियल कमिश्नर स्तर के अधिकारी को भी यहां से सरकार ने हेलीकॉप्टर से भेजा है। हम इस बात के लिए सेंसिटिव हैं कि पुलिस प्रशासन और मेन प्रशासन वहां पे ज्यादा दुरुस्त और होना चाहिए। और कर्फ्यू कहां पर लगा? कर्फ्यू कहां पर है? आर्मी बुलाई है, 8 शहरों के लिए आर्मी बुलाई थी, उसमें लेटेस्ट क्या पोजीशन है? लेटेस्ट पोजीशन ये है कि सब जगह फ्लैग मार्चेस चल रहे हैं, और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और मजिस्ट्रेसी के सहयोग से ही जो कल की बजाय आज जो इम्प्रूवमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर में नजर आ रही है वो इसी कारण से नजर आ रही है। कर्फ्यू कहां एमडीओ में भी क्या ये लोग घुसे हैं एजुकेशन करते हुए, कुछ इस तरह की जानकारी? ऐसे है कि अभी ये सूचना वेरीफाई करनी पड़ेगी कि आज क्या एमडीयू में कोई लोग घुसे हैं कि नहीं घुसे, ये वेरिफिकेशन की। कर्फ्यू की जहां तक स्थिति है, किस तरह के हैं, क्या कौन लोग आंदोलन चला रहे हैं, क्या चिन्हित किया गया, मतलब नेतृत्व कौन कर रहा है उनका, क्या पुलिस की क्या प्राथमिकता? ये सबसे ज्यादा जो कष्ट का विषय है वो यही है कि ये जो लोग एजिटेट कर रहे हैं ये लीडरलेस हैं। लीडर जो एजिटेशन करते हैं उनको टैकल करना, उनको संभालना, उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत आसान होता है। जो ये लीडरलेस और यूथ जो इसमें इन्वॉल्व हो गया, जो बहकावे में आके या कुछ असामाजिक तत्वों ने जो इस मूवमेंट में जो ज्वाइन कर लिया,
यही कारण है कि हमें इसको टैकल करने में समय लगा। कर्फ्यू कहाँ है? कर्फ्यू वन एट ए टाइम प्लीज। आईजी का रोहतक में आईजी का आवास और मंत्री का आवास थोड़ी दूरी पे है। आईजी के आवास पर कोई नुकसान नहीं और मंत्री की कोठी से वसूल हुई। क्या आईजी के घर पे पुलिस की सुरक्षा है? ये बात सुनिए, ये बात गलत है कि एक मिनट आपका जवाब दे रहा हूं मैं, आपके एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। ये बात गलत है कि आईजी के निवास पे किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। उनके घर का गेट भी जलाया गया है, उनके घर पे पथराव भी हुआ है। लेकिन हमें खेद है कि माननीय वित्त मंत्री जी के घर पे आगजनी हुई, पथराव हुआ और वहां पे जो गाड़ियां खड़ी थी उनको जलाया गया। सर, ये आंदोलनकारी हरियाणा के या कहीं बाहर से भी आए हैं कुछ लोग? जहां तक हमारी सूचना है काफी हद तक आंदोलनकारी हरियाणा से हैं, लेकिन बाहर से कोई आंदोलनकारी आ गए हों इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। कर्फ्यू कहाँ है? कर्फ्यू ये मानते हैं कि 6 दिन पहले इतना आंदोलन क्यों हुआ था? हरियाणा पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये आंदोलन इतना बढ़ गया। उसी समय अगर एक्शन ले लिया जाता तो वहीं की वहीं रुक सकता था आंदोलन। ऐसा है कि किसी भी आंदोलन को जो इतना वाइड स्प्रेड हो, जिसमें इतने लोग इन्वॉल्व हों, तो ऐसे आंदोलन को जो टैकल करने का जो तरीका होता है, पहले बातचीत करके सारे ऑप्शंस बातचीत करके उनको समझा के, और जो भी चीज है उनके साथ वार्तालाप से इस तरह के एजिटेशन को टैकल करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन कर्फ्यू की स्थिति कर्फ्यू की स्थिति में अभी एग्जैक्टली मुझे थोड़ा इसमें हो सकता बताएंगे। 3 जगह है जी। रोहतक शहर, भिवानी शहर और झज्जर शहर, ये 3 जगह कर्फ्यू लगे थे कल रात को। जिन जगह कर्फ्यू लगे हैं, कर्फ्यू लगने के बाद उन शहरों में कल देर रात को और आज सुबह कोई दुर्घटना के कोई समाचार नहीं है। बाकी शहरों में रोहतक में रात को लूट मचाई गई है, दुकानें तोड़ी गई है कर्फ्यू लगने के बाद, और आज रोहतक में सारे के सारे पुलिस स्टेशन जितने भी हैं और थाने हैं टोटली ताले लगे हुए हैं। पुलिस वाले अपने घर बैठे हैं, कैसे कानून उसका सुधरेगी बताइए? देखिए, पुलिस वाले घर नहीं बैठे, हमने नहीं आप अपने चीजों को वेरीफाई करा लीजिए। पुलिस के हमारे डायरेक्टर जनरल श्री BS संधू, हमारे DIG श्री सौरभ सिंह आर्मी के साथ, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सुनारिया की तरफ से कुछ लोगों की मूवमेंट थी जो शहर में आना चाहते थे, उनको उन्होंने एंगेज किया, टैकल किया और शहर में पूरी कानून व्यवस्था कायम करने का पूरा प्रयास है। सर,